अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द क्लास। और उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा, आप सब खैर आफियत से होंगे, घरों में रह रहे होंगे और अपने आप को, अपने चाहने वालों को, अपनी फैमिली को, सबको महफूज रख रहे होंगे। हम लास्ट क्लास से आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, द फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी 2020 गाइड टू सक्सेस। और ये लेटेस्ट आर्टिकल सिरसिस ने पब्लिश किया था आफ्टर द पैंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस। इस लिहाज से बहुत रेलिवेंट है। एंड इफ वी सी द न्यूज़ राइट नाउ और द कंडीशन राइट नाउ, we believe that the current situation of pandemic or COVID-19, it would be a prolonged issue for the suppliers and for the buyers and for the international trading community. ये तो हो सकता है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या इस तरह की जो दूसरी वो हैं वो ओपन हो जाएं, बट वी विल फेस द इश्यूज फॉर आवर ट्रेड्स फॉर एटलीस्ट अ ईयर और टू। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से बेहतर तरीके से सप्लाई चेन को मैनेज कर सकते हैं, एंड विच टेक्नोलॉजीज विल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इसकी इनिशियल समरी पे। देन वी सॉ दैट व्हाट आर द ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेंड्स, how software as a service will play an important role and will be merged with the artificial intelligence, and how these things are going to change the models that are currently adopted and that will be adopted in the future. फिर हम APIs के ऊपर हमने बात की थी कि जो APIs हैं दे आर रियली इम्पॉर्टेंट, और आज हो सकते हैं हम और उसके ऊपर डिस्कशन करें। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के ऊपर, देयर एबिलिटी टू जेल विद डिफरेंट सिस्टम्स। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्रेट मैट्रिक्स, उसके कुछ पॉइंट्स हमने कर लिए थे, कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे कहा था आपने करना है। सॉरी फॉर दैट। आर्टिकल्स में आपके साथ शेयर कर चुका हुआ हूँ जो लास्ट माइल डिलीवरी के हवाले से, लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज के हवाले से। सो वी विल डिस्कस देम इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। This last mile value added services, we will discuss things related to it in the next lecture after you are gone through with the article. And now we're talking about the third key element in this article, which is 2020 freight technology integration trends. The rise of APIs, integration, and faster freights. Okay, so last time हमने जब APIs की बात की थी, so I gave you an example कि APIs are sort of a small widgets right now, just to understand, जिसे multiple platforms के ऊपर use किया जा सकता है. When we say it can be used on multiple platforms, or it can help you integrate different services on a single platform, that means that it gives you extra leverage, or that gives you something extra that can help you change according to the situation, that can help you respond according to the situation, according to the changing needs. Earlier, before these sort of technologies या इसकी बहुत ज़्यादा implementation से पहले, what would you do? You would go for a specified software or specified module for your software, for your system, for your delivery system, for your transportation system, warehousing system. With APIs, these small programs help you to take on or to implement a particular modular approach or to a particular functionality in your system without getting involved into development of such thing. Okay? वो आपको बड़ा easily adaptability ensure करता है. The first thing that is in the article is about the elastic freight technology. Elastic logistics refer to the ability to expand and retract shipping capabilities as a demand shifts. जब हम इलास्टिक की बात करें, so what does elastic mean? You know that, okay,
it has an ability to be stretched, it has an ability to resize, it has an ability to adapt to the change. तो हम जब अपने systems की बात कर रहे हैं that we want our systems to be more elastic, we want our delivery system specifically to be more elastic because the pressure on delivery system has multifolded just because of this pandemic issue. People are staying home, ordering online, and such scenario has created a lot of issues. अब वो next point पे हम e-commerce में भी देखेंगे. So before we move on towards e-commerce freight shipping, it is important to understand कि APIs और integrating platforms की significant importance है आपकी supply chain को elastic बनाने में, आपकी supply chain को adaptability को ensure करने के लिए it's really important that you should be able to integrate such systems like APIs or software as services. Okay, so APIs will bridge the divide between proprietaries. Yes, this is another important issue. A common concern in the age of the internet is loss of proprietary information. Okay, proprietary information means we are talking about intellectual property rights that a particular software, a particular module is being developed by some organization, and then they believe that, and if you try to copy that, then conflict arises that they had done all the R&D, research and development stuff. They had spent a lot of money, and now you are just simply imitating the same things. With APIs, it actually bridges this gap. So for instance, just to explain you, अगर एक कंपनी है जिसने एक पर्टिकुलर एपीआई बनाया है, हम इसके बिल्कुल पहले बिल्कुल बेसिक्स या ऐसे सिंपल रहते हैं जिसे आपको समझ आ जाए, फिर उसके बाद आगे किसी बेहतर या किसी बड़े लेवल की एग्जांपल पे चले जाएंगे. आप अपने मोबाइल फोन्स के अंदर वेदर की विजेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. वो वेदर कहाँ से, मोस्टली जो एंड्रॉइड के फोन्स के साथ अटैच्ड है, दैट इज एक्यूवेदर. अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि एंड्रॉइड खुद से ये सर्विस दे, बट इट वुड टेक फ्रॉम एक्यूवेदर, ठीक है. तो एक्यूवेदर वुड हैव इश्यूज के their data is being used without their prior consent, or maybe without giving them the gain of it, ठीक है. जो views हैं, without getting them the traffic, Android maybe or any other platform is actually using their services. But with this API, what happens that AccuWeather supplies them, AccuWeather provides them with a small program, application program that is embedded in your software, in your phone's operating system. And now there is no issue of proprietary because AccuWeather is providing you services, and you, while looking at that, know that these services are being provided by AccuWeather. And if you want to see more, you just click that and you go to their website. So it makes it a lot easier for Android and AccuWeather both. So it helps AccuWeather claim their right, and it helps Android not get into extra burden of developing a particular facility, for instance weather. Similarly, जब हम GPS ट्रैकिंग की बात करते हैं, जब हम लॉजिस्टिक सर्विसेज के वाले से मैप्स की बात करते हैं, तो अब आपके पास जो GPS ट्रैकर्स हैं, मैप्स हैं, दे आर मोस्टली पावर्ड बाय गूगल. When they are powered by Google, they provide you an API, they provide you a widget, or they provide you a particular small program that helps your drivers, that help your delivery personnel look at the map, use the GPS, get the navigation, and they do not have any proprietary issues as well. ठीक है, कि आप स्टीलिंग कर रहे हैं या आप किसी और का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं विदाउट अ कंसेंट, और इवन इफ देयर इज अ कंसेंट, दे मे नॉट बी गेटिंग द ट्रू बेनिफिट ऑफ you of that particular utilization. ठीक है. एक और जो इसके इम्पोर्टेंट बात है कि APIs are mostly can be integrated in multiple system, multiple platforms. So they are primarily modern day development में जो software development है उसके साथ उसमें इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बहुत हद तक कर दिया गया कि इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. तो आपका जैसा भी सिस्टम है, आप जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, इट वुड बी अ लॉट इजियर फॉर यू टू गेट इट डन.
ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसमें क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स की बात आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात आ रही है। क्लाउड बेस्ड हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में स्पेसिफिकली इट अलाउज यू, इट हेल्प्स यू गेट लार्ज बेनिफिट, कनेक्टिविटी, ubiquity, accessibility with less resources utilized। ठीक है, तो आप ऑनलाइन आपके पास तमाम चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है एंड इट हेल्प्स यू टेक better advantage of services rather than developing your own, or rather than having a physical location for the data that you use, that you create basically। अच्छा जी, अच्छा जी, next is inventory management integration will become synonymous with procurement। ठीक है, now the procurement has always been a critical component in supply chain। Most of your quality criteria, most of your product specification, most of the cost advantage that you get is in the procurement department itself। If you procure, if you're doing a right procurement, that actually gives you leverage for profit maximization, for competitive advantage, for gaining more customer for more customer, you can say retention or attention or loyalty or services or satisfaction. So procurement plays a significant role. Now the point is that in with e-commerce supply chains and all that stuff, in-store limitations, in-store visits have reduced in the current scenario। ठीक है, पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से, वैसे भी now people want to see things before they go to the store, or people want to order even going without to the particular physical store। अच्छा, जब ये सिनेरियो है जहाँ लोग ऑनलाइन जाके देखना चाहते हैं, जहाँ लोग प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं रादर देन गोइंग इन स्टोर, वहाँ फिर आपके पास जो इन्वेंट्री है दैट प्लेज अ क्रिटिकल। अब आपकी जो प्रोक्योरमेंट है वो वेयर हाउस के साथ इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। सो पहले क्या है, पहले ये है कि जी प्रोक्योरमेंट एक डिपार्टमेंट है, वो प्रोक्योर कर ले। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक सप्लायर हैं, लेट्स से गारमेंट के, आप ऑनलाइन आपका स्टोर है गारमेंट्स का, और आपका एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है जो प्रोक्योर कर लेता है। वो जो प्रोक्योर कर लेता है और उसकी इंटीग्रेशन नहीं है आपके वेयर हाउस के साथ, फिर क्या इशू है कि कितने टाइम में, जितने टाइम में वो लीड टाइम था, जितने देर में आपने प्रोक्योरमेंट की तमाम एक्टिविटीज की वेयर हाउस में, उतनी देर में जो स्टॉक है उसका लेवल सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुका है। इसको हम ये कह रहे हैं कि इसको बेहतर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे यहाँ आपके पास ये फॉर इंस्टेंस टेक्सास ग्रोसर की एग्जांपल है। HEB is now working to encourage customers to order through its curbside service, leveraging inventory from arriving trucks to fill orders in the week of the coronavirus outbreak। Means आपके पास जो इन ट्रांजिट इन्वेंट्री है वो भी विजिबल है, तो आपकी जो इन ट्रांजिट पे है या जो शिपमेंट के अंदर है वो इन्वेंट्री भी कस्टमर के लिए अवेलेबल है। सो यू आर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ गेटिंग स्टॉक आउट। आप स्टॉक आउट होने के रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर रहे हैं जस्ट बाय कनेक्टिंग योर प्रोक्योरमेंट सिस्टम विद योर वेयर हाउसिंग सिस्टम। ठीक है, the only way to achieve such inventory management capability lies in integration and procuring more product around the clock। अच्छा, अब इसका एक और भी बेनिफिट है कि अगर आप ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अच्छा ये एक तो ये कि ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ और वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, ये इन तमाम चीज़ों के कम्बिनेशन की हम बात करेंगे कि तमाम चीज़ें सिंगल प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेटेड हैं और APIs आपको ये तमाम काम इजीली करने में मदद देंगे। अच्छा, जब आप ये काम करना चाह रहे हैं कि इन तमाम को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो जो बेनिफिट मैं आपको बताने लगा था वो ये था कि इसका बेनिफिट ये है कि आप अपने जो इन्वेंट्री लेवल जो आपने वेयर हाउस में जो आप स्टॉक कर रहे हैं, आप वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं।
वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि जब आपकी फॉर इंस्टेंस जो आपका सामान जो आपने प्रोक्योर किया है, जो प्रोडक्ट्स आपकी इन ट्रांजिट हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान में हैं, वो भी कस्टमर्स को अवेलेबल हैं, तो कस्टमर्स उसमें से जो ऑर्डर कर रहे हैं वो आप राइट अवे, यानी किसी भी क्रॉस डॉकिंग की फैसिलिटी से, किसी भी अनलोडिंग की फैसिलिटी से आप वहीं से उन ऑर्डर्स को डिस्पैच कर सकते हैं, स्पेशली कि आपके मॉडर्न डे में जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्ट्रांग है। और दूसरी बात ये कि आपके पास जो 3PL 4PL 5PL सर्विसेज हैं, जो लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, वो इंश्योर करेंगे आपकी मल्टीपल पॉइंट्स से डिलीवरी लेना, पिकअप पॉइंट्स बनवाना और उनको रेलेवेंट कस्टमर्स तक पहुंचाना। ये जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं 4PL 5PL 6PL ऑनवर्ड्स, ये तमाम इसी पर्पस के लिए हैं कि ये इंटीग्रेट करवा सकें आपके सिस्टम्स को मल्टीपल कस्टमर्स, मल्टीपल सप्लायर्स, मल्टीपल बायर्स को, मल्टीपल कस्टमर्स को। ठीक है जी। तो यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि आपके प्रोक्योरमेंट सिस्टम को, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम को इन्वेंट्री से, वेयरहाउस से कनेक्टेड होना है, इंटीग्रेट कराना है। इससे आपका जो प्रेशर है आप पे स्टॉक का वो भी रिड्यूस होगा और आप बेहतर सर्विस, बेहतर डिलीवरी सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। ठीक है जी। ठीक है, फिर माइक्रो सर्विसेज है। माइक्रो सर्विसेज बेसिकली सॉर्ट ऑफ एपीआईज होते हैं, बट दे आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप टेम्परेरी आर्किटेक्चर बिल्ड करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटीज को, सिस्टम्स को चेक करते हैं, दैट अलाउज यू टू understand the risks, understand the disruptions that are or that you may find in the future if you implement that particular program. So if you are trying to implement a particular API, now API, अच्छा एक बात ये important है कि हम पहली core importance है functionality की, जो आप लेके आना चाहते हैं उस functionality के लिए फिर there would be multiple APIs। ठीक है, उन functionalities को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप उससे पहले एक टेम्परेरी आर्किटेक्चर या टेम्परेरी सर्विस बिल्ड करते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि व्हेन यू इंप्लीमेंट सच प्रोसेसेस, सच सर्विसेज, what sort of disruptions, what sort of risks, what sort of uncertainties you are going to face in the future। ठीक है, तो आप उन्हें टेस्टिंग पर्पसेस के लिए अलाउ करते हैं। अच्छा, फिर क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आपने ये क्विक वे में, you have to do all this in a rapid and evolving way, so it's not possible to make a macro level or a holistic level or an enterprise level software or a service or a system or process and then test it, because it would take more time. माइक्रो सर्विसेज यानी स्मॉल सर्विसेज, स्मॉल लेवल पे जो प्रोसेसेस हैं, दे अलाउ यू टू अंडरस्टैंड, दे अलाउ यू टू इम्प्लीमेंट processes and understand the risk associated. Once you do that, once you understand that, it would be easier for you to select a particular API and also how to implement it and how to reduce the risks, disruptions associated with it. ठीक है? Okay, since the coronavirus is already putting the strain on retailers, microservices will be a strong area of 2023 technology integration trends throughout the year. Companies will look to test new fulfillment strategies, which may require configuring of POS system, point of sale systems, inventory. तो हम अब बात ही करें कि आप हर लेवल के ऊपर छोटे स्मॉलर उनको टेस्ट करते हैं, असेस करते हैं टू अंडरस्टैंड रिसेप्शन। ठीक है, और वो हर लेवल के ऊपर बात हो रही है, पॉइंट ऑफ सेल्स पे भी हो रही है, इन्वेंट्री कंट्रोल में भी, प्रोक्योरमेंट में भी, लॉजिस्टिक्स में भी, हर चीज। ठीक है, बिग डाटा पे हम मेरा ख्याल कई दफा बात कर चुके हैं। बिग डाटा इज द नेक्स्ट thing for all the businesses, may it be marketing, may it be HR, may it be your sales, or may it be supply chain or the production or the processes or the whatever innovation we are willing to take on. Big data is going to play a vital role. But the point is why big data is of such higher value, because of the great insight that it provides into customers, into markets, into
supplies, into suppliers, into buyers, into markets, into transportation, into it. It provides you a holistic, in-depth understanding of the system, scenario, environment that you are practicing your business in or that you are operating in. ठीक है, तो यह आपको हर लिहाज से एक बेहतर इंसाइट प्रोवाइड कर। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बिग डाटा, इससे आप क्या किस लेवल पे इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस लेवल पे इसे एनालाइज कर सकते हैं, इसकी एबिलिटी या आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी कितनी है इस चीज को यूटिलाइज करने की, वो प्रोवाइड करेगा आपको कि क्या वाकई आप इससे बेनिफिट ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। ऑटोमेशन भी इसके साथ एसोसिएटेड है, रोबोटिक्स वगैरह के साथ। ये रोबोटिक्स के थ्रू जो आप अपने ऑलरेडी आपको पता है कि वेयर हाउस में हम रोबोटिक्स का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी। प्रोक्योरमेंट में ऑटो प्रोक्योरमेंट के सिस्टम्स के लिए भी फिर इसके अंदर सिग्निफिकेंट इसकी इम्प्लीकेशंस आ जाएंगी। Okay, next thing that they have discussed is e-commerce freight shipping in 2020. Is this the year heavier freight in e-commerce proliferates? Point is कि जैसे हमने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि e-commerce has evolved significantly over the last decade, and more specifically in current situation. People are advised to stay home. Of course, they have their needs. They have to buy something, and they have to do it through online systems. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इससे ये जो करंट सिचुएशन है, इससे प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब वो प्रेशर किस चीज़ का है? वो प्रेशर है इंक्रीज्ड डिमांड का और इंक्रीज्ड एक्सपेक्टेंसी का। People who are buying online, they believe that they shall be provided services as, let's say, promised, or in a much quicker way. जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, वो एक सर्टन लेवल पे हैं, और उस सर्टन लेवल से जैसे उन पे प्रेशर ज़्यादा आया है, वो प्रेशर नंबर ऑफ जो शिपमेंट्स हैं उनका भी है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का भी है, और साथ ही इंक्रीज सर्विसेज, और दोनों चीज़ें उनके लिए मजीद मुश्किलात का सबब बन रही। यूएस का केस यहाँ पे जिक्र किया गया है, दैट इज कि if you see that consumer wants the same delivery standard, fast and free, for heavier e-commerce freight, and consumers are actively avoiding certain retailers that cannot meet such standards, right? कस्टमर्स क्या कह रहे हैं? कस्टमर कह रहे हैं भाई हमें, यानी अब दे आर ऑर्डरिंग मोर स्टफ ऑनलाइन, ठीक है? देयर पैकेजेस आर मोर हेवियर, their packages are heavier than ever before. Their packages are large and more in volume than ever before. लेकिन डिलीवरी सर्विस कस्टमर को वैसी ही चाहिए जैसे कि इससे पहले मिलती थी। Now challenge is that can the logistics do that? Can your logistics services have enough potential, elasticity, capability to adapt to this change or not? ये इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये एक रिसर्च सर्वे के हवाले से है, तो इसे आप पढ़ेंगे तो इट्स लाइक कि जो रिटेलर्स ज़्यादा टाइम ले रहे हैं डिलीवरी में, जो रिटेलर्स लेट्स से ज़्यादा सामान को सपोर्ट नहीं कर सक रहे, जिनके कार्ट में या जिनके ऑनलाइन सिस्टम में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादा ट्रैफिक को वो केटर कर सके, कस्टमर्स आर नॉट विलिंग टू बाय फ्रॉम देम।
ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो दैट विल easier for you to understand. अच्छा, अब हम बात करें कि ये जो हैवियर सिस्टम्स हैं, इन हैवियर सिस्टम्स के हैवियर जो ये हैं शिपमेंट्स हैं, कंसाइनमेंट्स हैं, कंज्यूमर्स जो परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन, ये इससे प्रेशर तो आया, बट इट हैज सम बेनिफिट्स. इट अलाउज कैरियर्स टू चार्ज मोर. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस, ये नहीं बेसिक सी बात है, आपको पता है कि आप जो TCS पे जाते हैं, आप दो आप 2 kg का पैकेज भेजेंगे तो इस चार्ज एट ए डिफरेंट प्राइस, 5 kg, 8 kg. सिमिलरली जो हैवियर फ्रेट्स हैं, ज़्यादा कंज्यूमर्स इस पे परचेजेस कर रहे हैं, तो सप्लायर्स भी इसमें और कैरियर्स भी, सॉरी कैरियर वो हैं जो इसे कैरी कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो इसमें ज़्यादा चार्ज कर सकते. ठीक है, फॉर अ लेसर वॉल्यूम. इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेट्स आर मोर, वॉल्यूम्स आर लेस, ओवरऑल जो स्पेस वो यूटिलाइज कर रहे हैं वो कम है, एंड इट हेल्प्स अ कैरियर टू चार्ज मोर एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, एंड इट विल हेल्प कीप द इकोनॉमी मूविंग इन कोरोना वायरस pulls the nation and world into an economy. ठीक है जी, with social distancing, ये यहाँ से मैंने आपको बताना था. हाँ, heavier rates into core component of the global e-commerce shipping and shipping experience. For carriers struggling to keep up with capacity, heavier freight shipping can also fulfill more trucks, avoiding deadhead and unnecessary losses. So if there is more items that you have to take, if you have to carry heavier and large amount of consignments, it will also provide you less per unit cost for shipping. जिसे हम आमतौर पे कहते हैं कि जी फुल ट्रक लोड हो जाएगा या डेड वेट खत्म हो जाएगा. ठीक है, डेड वेट कम हो जाएगा, पे लोड ज्यादा हो जाएगा. पे लोड ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली दैट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, हम ये यकीनन बेसिक सप्लाई चेन के कोर्स में पे लोड और डेड वेट डिस्कस कर चुके होंगे. आज के इसमें से आपके लिए एक असाइनमेंट है कि इस अनग्रेडेड असाइनमेंट है ये. ऑफ कोर्स आपने इस वीडियो के नीचे फिर कमेंट्स में आपने पेलोड और डेड वेट बताना है, उसे एक्सप्लेन करना है, और उसके लिए कोई एग्जांपल भी आप दे सकते हैं. ठीक है, then there are 8 points that talk about that how to prepare for heavier or more diverse freights in e-commerce. अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट डाइवर्सिटी के ऊपर शायद इससे पहले बात नहीं. डाइवर्सिटी भी बड़ी फिर इम्पोर्टेंट इशू है. अर्लियर क्योंकि आपके पास स्पेसिफाइड थे, सिंगल कंज्यूमर्स की टाइप्स डिफाइंड थी, कंज्यूमर्स अपनी सर्टेन परचेजेस ऑनलाइन करते थे, सर्टेन परचेजेस इन स्टोर करते थे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी ईजियर था मेंटेन करना. अब इशू ये है कि कंज्यूमर जब सब कुछ ऑनलाइन परचेज कर रहा है तो एवरीथिंग, फॉर इंस्टेंस ग्रोसरी आइटम रिक्वायर्ड डिफरेंट प्रिकॉशन, डिफरेंट शिपिंग मैकेनिज्म, डिफरेंट पैकेजिंग, different handling than maybe some sort of these electronic items that are fragile or different from fragile items or different from medicines. अब एक single consumer is ordering different or more diverse items from the online platforms. और एज ए शिपर, एज ए कैरियर, आपके लिए ये भी एक इशू है कि आप कैसे इस डाइवर्सिटी को मैनेज करेंगे. ऑफकोर्स सिंगल पैकेजिंग, डिफरेंट केयर, फ्रिजिलिटी को कंसिडर करना, उनकी जो है स्मेल के हवाले से चीज़ों को कंसिडर करना. देन इन मुस्लिम कंट्रीज, देन या जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए उसका सर्टन स्टैंडर्ड मेंटेन करना. ये तमाम चीज़ें इफेक्ट जो है इशू क्रिएट करेंगी, या ये तमाम चीज़ें भी लॉजिस्टिक कैरियर्स के लिए इशू क्रिएट कर रही हैं. ठीक है, इन 8 पॉइंट्स को इजी है. कलेक्ट डेटा ऑन हैवियर ई कॉमर्स. सबसे पहले डाटा कलेक्ट करें, कस्टमर के साथ कनेक्ट करें, अंडरस्टैंड करें उनके बाइंग पैटर्न्स, कि उनका बाइंग पैटर्न क्या है, इस वक्त क्या है, आने वाले महीने 2, 3, 4, 5, 6 महीनों में क्या होगा. इसका कोरोना का जब सिचुएशन रिड्यूस हो जाएगी
फिर उसके बाद वो कैसे परचेजिंग करेंगे, इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, इन तमाम चीज़ों को फोरकास्ट करेंगे। इधर फिर आपके पास बिग डाटा का रोल आना शुरू हो जाएगा। अपने ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम को प्रोक्योरमेंट से, वेयर हाउस से, इन्वेंट्री से, इन तमाम चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करें। ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाएं। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम ये बात कर रहे हैं कि हम ईआरपी की, बड़े सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन थ्रू सॉफ्टवेयर एज सर्विस, SaaS और APIs, हम ये बात कर रहे हैं कि आप ये इंटीग्रेशन लेके आए स्मॉलर मॉड्यूल्स के थ्रू, जिससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो और जो इजीली रिप्लेसेबल भी हो, अपग्रेडेबल भी हो, अडेप्टेबल भी हो चेंजेस के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ कि हम जब इस इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन से नॉर्मली जहन में एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम्स आते हैं, ERP सिस्टम्स आते हैं, BRP सिस्टम्स आते हैं। हम यहाँ उसकी बात नहीं करें, हम यहाँ प्राइमरली हमारा कंसर्न है कि हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स के थ्रू, APIs और क्लाउड सर्विसेज के थ्रू इनको इस्तेमाल करें। अवॉइड अननेसेसरी सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन दैट ऐड टू डिसेप्शन रिस्क। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करें। अच्छा, जब आप APIs लेके आते हैं तो ये भी आपको बेनिफिट होता है कि आप उसकी जो अपग्रेडेशन वगैरह है वो बीटा में आती है, वो टेस्ट होती रहती हैं और आपके ऊपर बर्डन बहुत देर से आता है, या आपके ऊपर उसके जो चेंजेस के इफेक्ट हैं वो बहुत देर से आते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप माइक्रो टेस्टिंग कर रहे होंगे तो उससे ये डिसेप्शन का रिस्क और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। Do not stop supply chain operation unless ordered to do so, or failure would create an undue risk to staff members. ठीक है? अब ये बात हो रही है कि आप सप्लाई चेन ऑपरेशंस इस डर से कि कोरोना वायरस आउटब्रेक है उससे रोकें मत. You have to take the necessary precautions. You have to work around the clock, but with certain guidelines, with certain criteria ensured applied. Work with more carriers to avoid potential disruption, of course. Do not keep all your eggs in a single basket. Make sure that you have pool of carriers, just like we ensure that we have pool of suppliers, we have pool of customers, we have pool of warehouses, we have pool of most of the things, just to make sure that we have alternate, we have plan B, we have our areas, we have our hedges covered with different people, with different organizations. ताकि अगर certain issue create हो तो you have an alternative to look at, you have a contingency plan. Consider the unique needs of customers, ensuring carriers follow CDC guidelines to avoid spending too much time in customers' home. If extra time is needed, ensure drivers wear mask. ठीक है, तो आपने इंश्योर करना है कि जी ये CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, आपने ये इंश्योर करना है कि कस्टमर के साथ प्राइमरली फोकस ये है कि जो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है पिकअप पे या डिलीवरी पे, ये जो इंटरेक्शन है, एक तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन को मिनिमल किया जाए। दूसरी बात है कि जहां आपको ये करना है या जहां आपको इस पे टाइम ज्यादा लगाना है, जहां आपको उसके लिए मे बी पैकेजिंग करनी है, जहां आपको वहां से पिकअप करना है होम बेस्ड, वहां आप नेसेसरी जो प्रिकॉशंस है वो इंश्योर करें. Take advantage of ongoing route optimization, leveraging real-time data to understand change in trade lanes and ठीक है, तो जहां आपके पास ये इशू है वहीं आपके पास इसमें से रूट ऑप्टिमाइजेशन के चांसेस हैं. उसकी वजह ये है कि अब आपके पास ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक रिड्यूस्ड है, तो यू कैन टेक डिफरेंट रूट्स, यू कैन टेस्ट डिफरेंट रूट्स, यू कैन सी कि किस जगह किस रूट पे ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा पोटेंशियल है और ज्यादा आपके वो एफिशिएंट सोर्स मिले. ठीक है, अभी आज के लिए यहाँ वो करते हैं समरी, आप इसकी रीड करेंगे, इसमें आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर दें. होपफुली आई विल आंसर विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट वुड बी रिगार्डिंग लास्ट माइल सर्विसेज, जो उम्मीद है कि आप वो आर्टिकल पढ़ चुके होंगे और कोशिश करें कि इन चीज़ों को साथ साथ पढ़ते रहें, जो चीज़ समझना है पूछें, सर्च करें, डिस्कस करें और make sure that you're keeping a pace with the course. And good luck. Exams के हवाले से of course as soon as we get any information we will convey to you or you will be conveyed to university. Right now the important part is to keep yourself safe, keep your family safe, and just get along with the concepts, read the material timely, and ensure that you are keeping a pace. And happy Ramzan.
हैव अ ब्लेस्ड रमज़ान और खुश रहें, आबाद रहें। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको कोई भी क्यूरी होगी, क्वेश्चन होगी, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ठीक है, ये मैंने, अस्सलाम वालेकुम।